Good morning, students. So let us begin with the next chapter, that is force and laws of motion. Okay. So the first thing that we will discuss here is what is force. So if we talk about force, then what is force? It is a push or pull. We can also call it as effort. Okay, which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion and shape, size or direction. Okay, so basically it is an effort which changes the state of rest or of uniform motion, or it can change the shape, size or direction. That means by applying the force, what we can do, we can change the direction of an object, the direction in which it was moving. We can change the state of rest or uniform motion. That means if a body is moving with uniform motion, it can be brought to rest or its motion can be changed, or if a body is at rest, then it can be brought into motion. By applying force, we can change the shape of the object, size of the object or direction of the object. Okay, now if we talk about the formula, what is the formula of force? It is F equals to ma. And now what about it? It is a vector quantity. Force is a vector quantity. Here for m means the mass and a means the acceleration. Mass into acceleration is the formula for the calculation of force. It is a vector quantity. SI unit, what is the SI unit? The SI unit is Newton. Okay, now how we will define 1 Newton? ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर एक न्यूटन को डिफाइन करना हो, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? इट इज m into a. अब अगर इसको 1 न्यूटन करना है तो व्हाट विल डू, सिंपली विल पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल द क्वांटिटीज एज 1. ओके, व्हाट वी गेट, so we can say if a body of mass one kg undergoes an acceleration of 1 meter per second square, then the force acting is said to be 1 न्यूटन. ओके, ठीक है, तो मतलब 1 kg मास का ऑब्जेक्ट हो और उस पर जो एक्सेलरेशन काम कर रहा हो वो कितना हो, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, then at that time the force acting will be how much? It will be 1 Newton. Okay, now let us discuss about the types of forces. So मैं फ्लो चार्ट टाइप का बना के आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस. सबसे पहले 2 टाइप्स की होती हैं, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट. अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कौन सी आती हैं?
फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, और मैकेनिकल फोर्स। उसके बाद नॉन कांटेक्ट में, और मैं इसमें एक और छूट गई, दैट इज टेंशन, एंड द फोर्थ वन इज due to collision, or we can simply say collision. Okay, here non-contacts, that is gravitational force, second one is electrostatic force, and the third one is magnetic force. Okay, so you can remember by drawing this flow chart. That's why I have drawn the flow chart. अब मैं इसके बारे में बताऊंगा, बट जब भी आपको याद करना होगा यू कैन मेमोराइज इट बाय यूजिंग दिस फ्लो चार्ट। ठीक, कितने टाइप्स के हो गए, बेसिक डिफरेंस क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या कौन कौन सी होती है, फ्रिक्शनल फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स है, टेंशन है एंड कोलिशन है। फिर आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है। क्लियर, you can remember it, fine. So now let us start discussing about them. Okay, so the first one, contact force. अब पहले डिस्कस कर लेते हैं what is contact force. It is a force in which the body which applies force and the body on which the force is applied are in फिजिकल कॉन्टैक्ट। ओके, जिस बॉडी से फोर्स लग रही हो और जिस बॉडी पर लग रही हो, अगर दोनों में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है देन वी से द फोर्स एक्टिंग इज अ काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज frictional force. What is frictional force? It is the force which opposes the motion of one body over the अदर। ठीक है, एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर मूव करने से रोकता है। ठीक मतलब जैसे इफ यू ट्राई टू रब आवर हैंड्स, सो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द हैंड्स विल बी फ्रिक्शनल फोर्स, एंड इन दैट केस इफ वी से मतलब जब हम अपने हाथ को रब करने की कोशिश करते हैं द हैंड्स डू नॉट मूव वेरी स्मूथली, कुछ अपोजिशन होता है, कुछ अपोज होता है। सो दैट अपोजिशन ऑफर्ड बाय वन हैंड टू द अदर इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, वी आर एबल टू मूव ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ना होती सो वी मे नॉट बी एबल टू स्टैंड इवन। ठीक है, पैर रखते ही द मोमेंट वी विल पुट द फीट ऑन द फ्लोर वी मे स्लिप। ओके, सो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से फ्रिक्शन वो एक्चुअली होता क्या है, सरफेस अपोजेज आर मोशन। ठीक है, सरफेस हमें रोकता है जिसकी वजह से हम लोग उस पर चिपके रहते हैं, यू कैन से। ठीक है, सो व्हाट इज फ्रिक्शन, इट इज बेसिकली अ फोर्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर। ठीक है, मे बी यू हैव गॉट इट नाउ।
अब फ्रिक्शनल फोर्स की खास बात क्या होती है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो हमेशा उसके अगेंस्ट, ठीक है, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज opposite to the डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, ओके। ठीक, अब मोशन, किसी बॉडी को मोशन में लाने के लिए भी एक फोर्स लगाई जाएगी, ठीक है, आई बात समझ में। उस फोर्स को लगाने के बाद जो अपोजिंग फोर्स काम करती है दैट इज फ्रिक्शन, ठीक है। किसी फोर्स के अगेंस्ट जब कोई दूसरी फोर्स काम करना स्टार्ट करते हैं दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। अभी आपकी जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है इसके भी कई टाइप्स होते हैं, मैं बता देता हूँ, मैं उसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। आई विल टेल यू द नेम्स, ओके। सो द फर्स्ट वन इज static friction. What is static? Friction acting between two bodies when it is at rest, ठीक है, मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख कर बता दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब जब दो बॉडीज रेस्ट पे हों, एक के ऊपर एक रखी हों, उस समय जो उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रही होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। सेकेंड केस दैट इज डायनामिक फ्रिक्शन। व्हाट इज इट, मोशन, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे मोशन कर रही हो, ठीक है। और भी इसको कुछ पार्ट्स हैं, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जस्ट बिफोर मोशन, ओके। उसमें क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का सिंपल सा मतलब है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रखी हुई है एंड इफ वी अप्लाई सम फोर्स ऑन वन ऑफ द बॉडीज, ठीक है। अब अगर उस पर फोर्स लगाएंगे तो इट विल स्टार्ट मूविंग एंड द मोमेंट इट स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है, व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू मूव, जब मूव करना स्टार्ट होने वाली होती है उस समय जो फ्रिक्शन होती है किसी बॉडी में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यू कैन से लिमिटिंग फ्रिक्शन एक तरीके से जो होती है यही वही फ्रिक्शन होती है जो उस बॉडी को एक दूसरे पे होल्ड करके रखती है। जितनी देर वो रेस्ट पे थे दोनों, ठीक है, उस समय जितनी देर होल्ड करके रखा वही, क्योंकि हम जब उसको मूव कराएंगे तो विल अप्लाई सम फोर्स टू ओवरकम दैट फ्रिक्शनल पार्ट, और उस फ्रिक्शनल पार्ट को ओवरकम करने के लिए जो फोर्स लगेगी दैट विल बी लिमिटेड फ्रिक्शन। मतलब उस समय जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होती है उन दोनों को होल्ड करने के लिए जस्ट उससे पहले, दैट इज योर फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, व्हेन द बॉडी इज जस्ट टू मूव, क्लियर। देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, अब नाम से ही पता चल रहा है, इट इज अ काइंड ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन when body moves over another, but in this case the body slides over another, one body slides over another, then the friction acting between them is known as sliding friction, okay। Now the last one is rolling friction. What is rolling friction? अब स्लाइडिंग और रोलिंग में फ़र्क है, आप लोग समझ ही गए होंगे। स्लाइड करने का मतलब काइंड ऑफ स्लिपिंग, और रोलिंग का मतलब होता है उसको रोल करना, सर्कुलर मोशन करना, ठीक है। व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर अनदर, ठीक है, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर जब रोल कर रही हो उस समय उसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रही होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन, ओके। व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर अनदर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है, व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर। लिमिटिंग फ्रिक्शन, मोशन स्टार्ट होने से जस्ट पहले जो फ्रिक्शन होती है किसी भी बॉडी में दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन बॉडी इज इन मोशन। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट, ठीक है, ओके। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट दैट इज मैकेनिकल फोर्स।
what is it? Force applied using machine or ह्यूमन मसल्स। ठीक है, मतलब हम जो फोर्स लगाते हैं या किसी मशीन से जो फोर्स लगाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल फोर्स। क्लियर? इसमें इतना सही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, टेंशन। अब नाम के हिसाब से आप लोग प्लीज ना जाएं, इसमें कोई टेंशन लेने वाली जैसी चीज है नहीं। So what is tension? Basically tension is a kind of frictional force. Sorry, normal reaction force. Oh, I've missed normal reaction force. Okay. Now see, अगर किसी बॉडी को, फॉर एग्जांपल पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लेते हैं। मान लेते हैं किसी बॉडी को स्ट्रिंग से अटैच कर दिया गया, ठीक है, तो इसका तो वेट होगा कुछ ना कुछ, that will be acting towards the earth surface। अब इसके हिसाब से अगर ये सिर्फ वेट नीचे की ओर काम करे, दैट मीन्स ये स्ट्रिंग हो जानी चाहिए ब्रेक, टूट के नीचे गिर जाना चाहिए। बट टू बैलेंस दिस, ताकि वेट ना हो वो, ताकि ये ब्रेक ना हो, ठीक है। स्ट्रिंग की टेंसाइल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। अब ऐसा आप कहेंगे कई स्ट्रिंग्स टूट जाती हैं तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना वेट बेयर करता है, ठीक। जब वो वेट बेयर, या ऐसी स्ट्रिंग जिसमें किसी चीज़ को अगर हम लोग सस्पेंड करते हैं, दैट मीन्स लटका दें, और वो लटका रहे, टूटे ना, सो उसमें उस स्ट्रिंग में भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होती है, और वो जो फोर्स लग रही होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना नीचे की ओर फोर्स काम कर रही होती है उतनी फोर्स ऊपर की ओर काम कर रही होती है, जस्ट टू बैलेंस इट, ठीक है। सो वी कैन से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स acting along a string। इससे पहले मुझे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बतानी चाहिए, दैट इज व्हाई यू माइट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्टिंग along a string इज नोन एज टेंशन फोर्स, ठीक है। जब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसी स्ट्रिंग के अलॉन्ग एक्ट करने लगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। मैं बता देता हूँ, अभी पीछे मैं फ्लो चार्ट में बढ़ा दूंगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है? इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय अ सरफेस to balance its weight, ठीक है। सो वेट क्या होता है? किसी बॉडी को, फॉर एग्जांपल यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, ये मान लेते हैं एक सरफेस है, इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका वेट काम कर रहा होगा नीचे की ओर। अब बिल्कुल वही बात है जैसे हम लोग अपनी बात करें, इफ वी आर स्टैंडिंग ऑन अ सरफेस, ठीक, ग्राउंड पे खड़े हैं, तो हम लोग का वेट काम कर रहा होता है ड्यू टू द ग्रेविटी। किधर की ओर काम करेगा? ऑब्वियसली टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, बॉटम। अब अगर सिर्फ यही फोर्स काम कर रही होती तो द अर्थ माइट हैव कोलैप्स्ड और हम लोग उसके अंदर चले जाते, ठीक है, ब्रेक कर जाता, ठीक। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। दैट मीन्स फोर्स सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं लग रही है, कुछ ना कुछ तो है। यही होता है नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स। अब जितनी फोर्स नीचे की ओर लग रही है हमारे वेट की वजह से, उतनी ही फोर्स हम लोग पे लगती है, जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। और कौन लगाता है? ये सरफेस लगाता है, अर्थ नहीं लगाती है, ये सरफेस लगाता है, ठीक है। इस सरफेस में है ना हम लोग, तो जितना फोर्स इस सरफेस पर लग रहा होगा उतना ही फोर्स हम लोग, सरफेस हम पर लगा रहा होगा, अर्थ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और ये क्या करती है? इट जस्ट बैलेंसेस आवर वेट। अदर हमारा ही नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबली सरफेस पे पड़ा हुआ है तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब यहाँ पर देखिए कोई स्ट्रिंग नहीं थी, और यही काम अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सरफेस पे रखा गया तो द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज अप्लाइड बाय द सरफेस। बट ओवर हेयर अगर हम लोग टेंशन फोर्स की बात करें,
तो ऑब्जेक्ट को सरफेस पे नहीं रखा गया, स्ट्रिंग से लटकाया गया, तो अब इसको भी तो बैलेंस करने की जरूरत होगी। अब जो बैलेंस करने के लिए जरूरत होती है तो वो फोर्स किधर काम करती है, इट एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग विच इज टेंशन। तो और देख लीजिए इसका जस्ट ऑपोजिट काम करता है, ये हो गया वेट और ये हो गई टेंशन। क्लियर? you can see. So what is normal reaction force? It is basically a force which balances the weight of an object, ठीक है, और किसी न किसी सरफेस से लगाई जाती है, और टेंशन फोर्स हमेशा किसी न किसी स्ट्रिंग के अलॉन्ग एक्ट करती है, ठीक है। इज इट क्लियर? अब मैं इसमें बढ़ा देता हूँ, जो लास्ट पार्ट मिस हो गया है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल, ये रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज कोलिजन फोर्स ड्यू टू कोलिजन। अब इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है, द फोर्स अप्लाइड, ये rather we can say the force acting between two bodies when they undergo collision, ठीक है। मतलब जब किन्हीं दो बॉडीज का कोलिजन हो जाता है, टकराते हैं आपस में, कोलाइड करने का मतलब होता है टकराना, ठीक है, उस समय उनमें जो फोर्स काम कर रही होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज फोर्स ड्यू टू कोलिजन, ठीक है। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, अभी दोनों दूर दूर थे, ठीक, ये भी मोशन में था, ये भी मोशन में था, और ये आए दोनों टकरा गए, तो इस समय ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा, सो दिस फोर्स इज नोन एज व्हाट, फोर्स ड्यू टू collision. Okay, clear? So these were